Hello students, this is your lesson number 5, Adaptations How Animals Survive. Textual exercise, oral questions. What kind of animals do you see in a zoo? We see various kinds of animals in a zoo like terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal and aerial. Why aquatic animals cannot survive on land? एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो लैंड पर सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड एंड दैट इज़ वाई दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन लैंड। एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो लैंड पर ब्रीथ नहीं कर पाते, इसलिए वो लैंड पर सर्वाइव नहीं कर पाते। हाउ डज अ पॉर्क्यूपाइन प्रोटेक्ट इटसेल्फ? अ पॉर्क्यूपाइन प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय यूजिंग द शार्प स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन इट्स बॉडी। पॉर्क्यूपाइन जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसके शार्प स्पाइन प्रेजेंट है उसकी बॉडी पे, ऐसे वो खुद को प्रोटेक्ट करता है। नेम अ camouflaging एनिमल। जेब्रा। नेम एन एरियल एनिमल। पैरट। नेम एन स्कैवेंजर दैट इज वल्चर। नाउ multiple choice question. Dash animals are the animals that are in danger becoming extinct, that is endangered. Here is your next. Animals that fly in air are called aerial. Carnivorous eat only flesh. Circle the odd ones. Give reason for your choice. Cow, tiger, buffalo, tiger. Mosquito, least crow. Vulture, tiger, hyena, tiger. The natural home of an animal is called its habitat. Elephant is a terrestrial animal. Animals that eat flesh of dead animals are called scavengers. Birds and butterflies are aerial animals. Dash eat only plants, herbivorous. Tapeworms lives on the body of animals and suck their blood, false. Animals that spend most of the time on trees are called arboreal animals, true. Polar bears becomes inactive during winters and go into deep sleep, true. Salamander and chameleon are amphibians, false. Now this is the image of porcupine, this is bug and this is polar bear. Name an animal that has lungs to breathe on land and webbed feet to swim is frog. Gills are found in fish. Name an animal that can change its body color according to the surroundings. Chameleon. Name an arboreal animal. Monkey. Name a migratory bird. Siberian crane. Now, here is your short answers. What is camouflaging? The product and management of fish. Some animals can merge with the surroundings due to their color and shape of the body. This is called camouflaging. How does a polar bear survive in a polar region? A polar bear has a thick fur on its body to keep it warm. Means polar body के ऊपर जो thick fur होते हैं उसकी body को warm रखते हैं. It has a thick layer of under skin fat called blubber to keep them warm. और उसकी thick layer होती है अंडर स्किन की, उसमें फैट होता है, उसे ब्लबर कहते हैं और वो उसकी बॉडी को वार्म करता है. इन दिस वे पोलर बियर सर्वाइव्स इन द पोलर रीजन. और इसी तरह से पोलर बियर जो है वो सर्वाइव कर पाता है. लीव्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स एंड सक देयर ब्लड. व्हाट आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन द अदर एनिमल्स बॉडी कॉल्ड? द एनिमल्स विच लिव ऑन अदर एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड पैरासाइट्स. ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं. इज इट गुड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल इफ योर ओन वर्क? वाई नॉट? इट इज़ नॉट गुड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर आवर वर्क. ये अच्छी बात नहीं है कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है किसी काम के लिए. वी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड ट्राई टू डू ऑल आवर वर्क. और हमें हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, मतलब खुद का काम खुद ही करना चाहिए. ourselves when we do our work ourselves our confidence increases. अगर हम हमारा काम खुद ही करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. when we get our work done from others we feel cannot do anything our own. अगर हम हमारा काम किसी दूसरे से करता मीन्स कोई भी हेल्प करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हमारा काम खुद नहीं कर सकते.
Long answer questions. How does a camel live in desert without water for several days? Camels survive in desert due to following features: thick skin with very little hair so that it does not lose much water. मीन्स उसकी जो थिक स्किन है वो उसमें बहुत कम बाल है, जिसके रीज़न से वो उसकी बॉडी में से वाटर लूज़ नहीं होता. प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर. उसकी बॉडी में एक हम्प है जिसमें वो वाटर स्टोर करता है. फ्लैशी सोल्स विच हेल्प देम टू मूव ऑन सैंड. और फ्लैशी सोल जो है वो उसे हेल्प करता है सैंड में मूव करने के लिए. लॉन्ग आई लैशेज दैट प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम सैंड स्टॉर्म. और उसकी लॉन्ग आई लैशेज है जो उसे प्रोटेक्ट करती है सैंड से. नाउ वाई डू साइबेरियन बर्ड्स हैव लीव देयर होम इन विंटर? साइबेरियन बर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर ऑफ साइबेरिया. साइबेरियन बर्ड्स जो है वो वहाँ पर का जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर रहता है तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते. सो दे लीव देयर होम्स इन विंटर एंड फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू वार्मर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. और वो वहाँ से उनका घर मीन्स छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वो लोग फ्लाई करते रहते हैं और ढूंढते हैं कि कोई वार्मर प्लेस मिल जाए जहाँ पे उन्हें अच्छा खाना और रहने की जगह मिल जाए. दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस व्हेन विंटर एंड्स देयर. और जब विंटर ख़त्म हो जाती है तब वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड माइग्रेशन. और इसी फिनोमिनन को हम माइग्रेशन कहते हैं. व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट देम? एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? द एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो अब अर्थ पर कुछ सालों बाद हमें शायद अर्थ पर ना मिले, सो इसलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एक्सेट्रा. ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं जैसे कि फॉरेस्ट को कट करना, फैक्ट्रीज बनाना, हाउसेज बनाना, रोड्स बनाना. एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी एनिमल्स इज इन डेंजर. और फॉरेस्ट अगर कट हो जाता है तो सारे एनिमल्स वो लोग डेंजर में आ जाते हैं, मीन्स सिटी में आ जाते हैं. फिर उन्हें मीन्स पकड़ कर ले जाते हैं, ज़ू में रख देते हैं या कहीं, और उनकी ठीक से केयर भी नहीं हो पाती है. बट उन्हें जैसे रहना चाहिए फ्रीडम के साथ वैसे उन्हें रहने को मिलता नहीं है. और वी नीड टू प्रोटेक्ट देम अदरवाइज दे विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट इन कमिंग ईयर्स. अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ सालों बाद वो भी हमारे अर्थ पर उस टाइप के स्पेशीज हमें नहीं मिलेंगे. सो हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. सो हियर इज योर लेसन नंबर 5. टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज फिनिश्ड. इन द नेक्स्ट पार्ट we will start our next lesson, lesson number 6, useful animals.